बस आ गए ना सब? तो हाँ सर आ गए हैं, अटेंडीज में है। ठीक है, स्टार्ट कर दे। या मैम प्लीज। Hello everyone, myself Dr. Sunita Jain. I am General Secretary ABCA, President of North Zone Delhi. I welcome Dr. DC Prajapati, our National President of ABCA, and Dr. Neha of our Delhi President. Good afternoon everyone. It's my great pleasure and privilege to welcome you all to this enlightening webinar organized by ABCA. Today we have honor of hosting a distinguished speaker, Dr. Roli Premlani, who will be sharing her expertise on an important and thought-provoking topic, precocity and its psychological aspect and management. Dr. Roli Premlani is our Faridabad president of ABCA, and she is practicing homeopathy since more than 11 years in Faridabad. And with extensive experience in psychology, she is MSc in psychology, like child psychology, behavioral science. So her today's topic is helps us in research in precocity, and it is invaluable. Dr. Roli will provide us with deeper understanding of it. So without wasting much time, let us extend our warm welcome, Dr. Roli Premlani. We are very delighted to have you with us. Welcome, Doctor. Thank you, ma'am. Thank you for such a beautiful introduction of mine. Myself, Dr. Roli, I'm President of ABCA Faridabad Zone. And for me, the today topic is precocity. It is very hot topic these days. Most of the children, most of the parents are coming with complaints. They are able to see the symptoms of maturity in their children at a very young age, that is before 8 years. So, without wasting any time, I'll start my topic. Is my slide visible? Yes. Yes, Dr. Roli. Yes, it's visible. So precocity. Precocity is the early onset of the maturity symptoms like mental symptoms, emotional symptoms, and intellectual ability, social maturity, and it happens generally in children before the age of 8 or 9 in girls and after the age of 9 and 10 in boys. The actual age of maturity is 10 to 12 years in girls and 11 to 13 years in boys. लेकिन अगर उससे पहले ही maturity के symptoms आने लगते हैं, मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं गर्ल्स में और बॉयज में मुस्टैच आ जाना, बियर्ड आ जाना, मस्कुलर डेवलपमेंट हो जाना, जो भी प्यूबर्टी के सिम्टम्स होते हैं वो आ जाते हैं, तो हम उसको प्रीकॉशियस प्यूबर्टी बोलते हैं या प्रीकॉसिटी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ प्रीकॉसिटी, प्रीकॉसिटी बहुत तरह की होती है, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल। फिजिकल प्रीकॉसिटी इज अर्ली फिजिकल डेवलपमेंट, जैसे साइंस, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आ जाना गर्ल्स में, प्यूबिक हेयर्स हो जाना, एंड इन बॉयज में बियर्ड, मुस्टैचेस, वॉइस का हेवी हो जाना, मस्कुलर डेवलपमेंट हो जाना, दैट इज फिजिकल प्रीकॉसिटी। इंटेलेक्चुअल Doctor, sorry to interrupt you, but your slides are not moving. If you are moving the slides, it's only on the first slide actually. We can see only first the name and introduction. अच्छा, एक मिनट, मैं इसको दोबारा करती हूँ, है ना? Am I audible? Yes, ma'am. I'm audible, but screen is not visible. हाँ, एक अभी देखिए, अभी आ रही है स्क्रीन, तो मैं यहीं से चलाती हूँ फिर। No, not coming. अभी is it visible? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, तो डेफिनेशन आई थिंक प्रीकॉसिटी की क्लियर हो गई है सभी को। टाइप्स ऑफ प्रीकॉसिटी पे थे हम लोग। फिजिकल प्रीकॉसिटी, जिसमें फिजिकल सिम्टम्स जल्दी आ जाते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रीकॉसिटी जिसमें कॉग्निटिव एबिलिटीज जो होती हैं बच्चों की, पावर ऑफ रीजनिंग, पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ये अपनी एज से पहले आ जाती है, उसको हम इंटेलेक्चुअल प्रीकॉसिटी बोलते हैं।
एक्सेप्शनल आईक्यू होते हैं इन बच्चों के, जब इनका आईक्यू टेस्ट किया जाता है तो जो इनकी एज का आईक्यू होता है उससे ज्यादा इनका आईक्यू निकलता है। एंड देन इज इमोशनल प्रिकॉसिटी, देयर इज इमोशनल मेच्योरिटी। कभी कभी हम देखते हैं बच्चों में कि वो अपने एज अप्रोप्रिएट इमोशनल बिहेवियर्स नहीं शो करते हैं। उनका जो इमोशनल बिहेवियर होता है वो उनकी एज अप्रोप्रिएट इसलिए नहीं होता है क्योंकि बाकी बच्चे वो चीज नहीं शो करते। जैसे कभी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी टैंट्रम्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये होता है। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ प्रिकॉसिटी। एक और है कि इनका बेसिस ऑफ कॉजेज की वजह से ये दो तरह की और होती है प्रिकॉसिटी, दैट इज सेंट्रल प्रिकोशियस प्यूबर्टी एंड देयर इज पेरिफेरल प्रिकोशियस प्यूबर्टी। मैम ये वाली स्लाइड दिख रही है यस, दिख रही है ना? अब हम आते हैं जी सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी पे। नाउ व्हाट इज सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी? इस प्यूबर्टी इज ये जो होती है इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है ये क्यों हुई है, बट इसमें प्यूबर्टी जल्दी स्टार्ट हो जाती है, जैसे सब में फिर डेवलप होने लगती है वही होती है, और यूजुअल वे में चलती है। जैसे गर्ल्स में मेंसेस 8 और 9 इयर्स की एज में आ जाना, बॉयज में जल्दी डेवलपमेंट हो जाना सेक्सुअल ऑर्गन्स का और मसल बॉडी का, बियर्ड का, तो ये हो जाती है, बट देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन। बहुत ही रेयर कुछ रीजंस ऐसे देखे गए हैं, मोस्टली ये जेनेटिक होती है, तो इसीलिए या तो किसी बच्चों के ब्रेन में कोई ट्यूमर देखा गया है या फिर हाइड्रोसिफेलस कंडीशन की वजह से ये देखा गया है। कुछ रिसर्चेस इसको सपोर्ट करती हैं कि हाइड्रोसिफेलस जो बच्चे होते हैं उनमें भी प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है। समटाइम्स एक्सपोजर टू रेडिएशंस की वजह से हो जाती है, और सम ब्रेन इंजरी। अभी रिसेंटली भी एक सर्च चल रही है कि ये जो फोन्स के थ्रू रेडिएशंस निकलती हैं उसकी वजह से भी तो कहीं कुछ रिलेशन नहीं है प्यूबर्टी का, तो दैट रिसर्च वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन। अपार्ट फ्रॉम इट देयर आर सम जेनेटिक इश्यूज जैसे एड्रिनल हाइपरप्लेसिया, उसकी वजह से ये हो जाती है, और हाइपोथायराइडिज्म। अब उससे पहले हम ये समझते हैं कि प्यूबर्टी आती कैसे है। हमारी बॉडी में एक गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन होता है जो कि होता है हाइपोथैलेमस से रिलीज। हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि बाकी सारे ऑर्गन्स को रेगुलेट करता है, कब किसको ग्लैंड को रेगुलेट करता है कि कब किसको कौन सा हार्मोन निकालना है, लेकिन पिट्यूटरी को रेगुलेट करने के लिए होता है हाइपोथैलेमस। तो वहां से जब अ चाइल्ड enters the age of 12, 11 और 12 in girls and 13 and 14 in boys, तो हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिक रिलीज हार्मोन निकालना शुरू करता है जो कि पिट्यूटरी में जाता है। पिट्यूटरी वहां से LH दैट इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड FSH दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालना स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से ओवरीज एस्ट्रोजन रिलीज करना स्टार्ट करती हैं और टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन रिलीज करना स्टार्ट करते हैं। जो बच्चों में प्रिकॉसिटी हो जाती है, पहले हो जाते हैं जिन बच्चों में मेच्योरिटी, उसमें ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो होता है ये हाइपोथैलेमस से रिलीज नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ओवरीज एस्ट्रोजन निकालना स्टार्ट कर लेती हैं और टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरोन निकालना स्टार्ट कर देती है विदाउट रिसीविंग अ सिग्नल from hypothalamus that is in the form of gonadotropic release hormone. इतना क्लियर है? Hello? Yes, ma'am. Okay. Now there are reasons for it कि gonadotropic release hormone hypothalamus से क्यों निकलते हैं। जनरली देखा गया है कि एड्रिनल ग्लैंड्स में ट्यूमर्स होने की वजह से या फिर कुछ ऑइंटमेंट्स या कुछ ऐसे एक्सपोजर्स की वजह से आजकल छोटे बच्चे भी बहुत केमिकल्स यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन बॉडी से रिलीज होने लगते हैं। बहुत सारे परफ्यूम्स और डिओज में ऐसे केमिकल्स देखे गए हैं जो बच्चों की सेल्स में चेंजेस ला रहे हैं और जिसकी वजह से ओवरीज जो है बहुत जल्दी एस्ट्रोजन रिलीज करने लगती हैं। गर्ल्स में बहुत ज्यादा कॉमन ओवेरियन सिस्ट कॉमन रहती हैं और ओवेरियन ट्यूमर्स। कुछ ओवेरियन सिस्ट और कुछ ट्यूमर्स जो होते हैं ना बहुत जल्दी एज में जब बच्चा पैदा होता है या 2 और 3, 4 इयर्स की एज में जो होता है तब गर्ल्स के उसमें हो जाते हैं। बॉयज में स्पर्मेटिक कॉर्ड कट कैंसर ट्यूमर या कैंसर उसपे, या फिर एक बहुत ही रेयर जेनेटिक कंडीशन होती है दैट इज गोनाडोट्रोपिक इंडिपेंडेंट फैमिलियल सेक्सुअल प्रिकॉसिटी।
उनकी फैमिली हिस्ट्री में ही ये आ रहा है, जिसकी वजह से बॉयज जो होते हैं बिटवीन द एज ऑफ 1 and 4 दे स्टार्ट रिलीजिंग टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम देयर बॉडी. अब हम आते हैं इसके सिम्टम्स पे. क्या क्या सिम्टम्स हैं प्रिकॉसिटी के. सबसे कॉमन जो सबसे पहला सिम्टम है वो होता है ब्रेस्ट ग्रोथ एंड फर्स्ट पीरियड इन गर्ल्स, दैट इज मेनार्क का आ जाना. टेस्टिकल्स एंड पेनिस ग्रोथ, फेशियल हेयर्स, डीपनिंग ऑफ वॉइस इन बॉयज, देन pubic hairs and underarm hairs, प्राइवेट पार्ट में हेयर्स आ जाना, रैपिड ग्रोथ, और एक नीचे मैंने रिड्यूस हाइट लिखा है. दोनों ही चीजें इसमें होती हैं. ये बच्चे 8 और 9 साल की उम्र में अपने बाकी पीयर बच्चों से तो लंबे दिखते हैं, बिकॉज एकदम से ग्रोथ स्पर्ट होती है इनमें, लेकिन फिर बोन एंड्स फ्यूज हो जाते हैं. और जब ये अपनी एक्चुअल एज में पहुंचते हैं, जो 12 से 13 साल की उम्र होती है, जब बाकी बच्चों में प्यूबर्टी आना स्टार्ट होती है, उस समय इनकी हाइट कम रह जाती है, क्योंकि बोन एंडिंग्स के फ्यूजन होने की वजह से फिर फर्दर इनकी हाइट नहीं बढ़ती है. तो शुरू में देयर इज ग्रोथ स्पर्ट, बट आफ्टर दैट देयर इज जनरली सीन दैट प्रिकॉशियस puberty leads to reduced height. And then there are some psychological symptoms which are always associated with social anxiety, depression, social isolation, self-esteem issues and emotional distress. हम लोग इसको भी आगे डिटेल में कर रहे हैं. ये प्रिकॉशियस प्यूबर्टी जो होती है, ये एंजाइटी बहुत लेके आ जाती है बच्चों के अंदर, बिकॉज व्हेन दे सी देमसेल्फ एज डिफरेंट फ्रॉम देयर peers in the same group. उनको स्कूल में अपने जैसे बच्चे नहीं दिखते हैं, उनको अपने जो उनकी फिजिकल डेवलपमेंट है वो बाकी बच्चों में नहीं दिखते हैं, तो दे गेट एंशियस, दे कीप ऑन आस्किंग देमसेल्व्स, देयर पेरेंट्स, और इसकी वजह से वो बहुत एंशियस रहने लगते हैं. सेल्फ स्टीम इश्यूज आने लगते हैं, बिकॉज इन बच्चों में पहले से ही ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, हेयर पैटर्न है, जो अगेन इनको इंफीरियर फील कराता है इनके पीयर्स से. देयर इज सोशल आइसोलेशन ऑल्सो सीन, बिकॉज ये अपने एज मेट्स के साथ मैच नहीं करते हैं, इनके थॉट्स नहीं मैच करते हैं, इनके मेच्योरिटी लेवल नहीं मैच करती है, तो देयर इज सोशल आइसोलेशन. देयर आर आइडेंटिटी स्ट्रगल्स ऑल्सो, बिकॉज दे फील लाइक कि अभी हम हैं तो बच्चों वाली एज में, लेकिन हम बिहेवियर बड़ों वाले कर रहे हैं, एडल्ट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, एडोलेसेंट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं. देयर इज ऑलवेज एन आइडेंटिटी स्ट्रगल की वेयर टू कीप आवरसेल्फ इन द एज ग्रुप that we belong to, that is of a child, or because of our behavior we are behaving like an adult, so we should keep ourselves in an adulthood. So there is an identity struggle. Social development में भी बहुत सारा इफेक्ट देखा गया है. peer relationships में differences हो जाते हैं, disconnections हो जाते हैं, बच्चे social anxiety में चले जाते हैं, अपने आप को कहीं रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते हैं, हमेशा अलग रहते हैं. सोशल प्रेशर भी रहता है, घर वाले उनको बोलते हैं तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें ये समझना चाहिए, अब आपको ऐसे बिहेव करना चाहिए. तो ये सारी चीजें जो होती हैं बहुत ही कॉमनली प्रिकॉसिटी लेके आती है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सेक्सुअल मैच्योरेशन इश्यूज आल्सो, that is early sexual awareness, exploration. A child is very small to understand these menstrual terms, to handle the bleeding. And then boys are also very small to cope up with their happening voice. So these issues always keep them isolated from the peers. Now coming to the management, generally in allopathy, गोनेडोट्रोपिक रिलीज हार्मोन के एगोनिस्टिक दे दिए जाते हैं, जो कि सप्रेस कर लेते हैं LH और FSH के सिक्रीशन को पिट्यूटरी से. इसकी वजह से प्यूबर्टी डिले हो जाती है. बट देयर आर वेरी बहुत रिसर्चेस इसको सपोर्ट करती हैं कि ये एगोनिस्टिस जो हैं फिर एक्चुअल एज पे LH और FSH को भी सप्रेस रखते हैं और प्यूबर्टी बहुत डिले हो जाती है. तो इट्स ऑलवेज it's not very good suggestion to go for these kind of hormone therapies. It's better to look out for some other options or go for a psychological counseling of the children, because जो हो रहा है उसको होने दीजिए बॉडी में. It's better to address psychological issues of your child, handling them, seek help from a psychotherapist or a counselor to manage the anxieties and social issues in the children. Psychotherapy
जो होती है बहुत हेल्पफुल होती है, CBT इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती है कॉग्निशंस को, बिहेवियर्स को एड्रेस करने के लिए, इमोशनल नीड्स को एड्रेस करने के लिए। दे ऑलवेज फाइंड कि कोई एक काउंसलर के तौर पे या थेरेपिस्ट के तौर पे देयर इज समवन वेयर दे कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, दे कैन प्रोसेस देयर एक्सपीरियंस, अपने जो उनकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं या जो उनकी कॉग्निटिव में चेंजेस आ रहे हैं उनको कोप अप करने के लिए कोई है उनके साथ। They always want to have someone and that a counselor can easily do. Then counselor also helps in building up their lost self-esteem by addressing their negative thoughts and combating them with a positive thought. And उसके बाद improving social skills, because of early puberty, some children isolate themselves socially, so they help to combat. Counselors help to come back to the social environment. We have lots of good medicines in homeopathy for precocity. Number one, which is always top in my list, is Calcaria carp. For children who experience early maturity and emotional stress, बाकी homeopathy is always based on totality. मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ इसी सिम्टम के बेस पे आप प्रिस्क्राइब कर लीजिए, आपको कैलकेरिया के बाकी सिम्टम्स भी मिलने चाहिए, इनसिक्योरिटी फीलिंग बच्चे के अंदर मिलनी चाहिए, कैलकेरिया का मिलना चाहिए, कैलकेरिया की थर्स्ट मिलनी चाहिए, मायाज्म उसके मिलने चाहिए, देन यू कैन प्रिस्क्राइब कैलकेरिया का। Sulfur has helped in managing early maturity symptoms. Again, it is a well-known remedy for precocity where there is too much restlessness, but to be prescribed on the basis of totality. Lycopodium को हमने वैसे भी intellectual precocity के लिए use करते हैं, और Natrum muriaticum is also a very well-known remedy for precocity, especially when there is lot of social withdrawal. Child keeps herself isolated in a room and does not want to talk to anyone, is very emotionally sensitive, and so Natramur is always of great help in such cases. Next, my remedy is Lilium trigonum. Profound depression of spirits, there is too much depression, the child doesn't want to talk to you, वो पहली थेरेपी में या आपके पहले उसमें तो आपसे बात ही नहीं करेगा, just cry and in an aim कि बस जल्दी से आपके रूम से बाहर निकले और बाहर चला जाए. So in such cases, Lilium trig is a remedy of choice, but again to be prescribed on the basis of totality. Ignitia, nervous temperament, and ignitia का तो बहुत अच्छा symptom होता है, sighing and sobbing ignitia से अच्छी कहीं नहीं मिलती है, सिसक के रोना, ऐसे वो पेशेंट्स को इग्निशिया दिया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी. सीपिया, wearing down sensation, this is not only in the genital organs, this can happen in the mental sphere also. A child feels himself to be inferior, वो हमेशा अपने आप को डाउन फील करता है, एस्केप आउट करने की कोशिश करता है, चीजों से भागने की कोशिश करता है. So this again can be a good remedy of choice. In conclusion, the key takeaway is precocity is a complex issue that requires holistic approach. Homeopathy is always good for this. Homeopathic medicine ही holistic approach पे रहती है. Physical और psychological effect दोनों ही आते हैं, इसीलिए treatment दोनों ही conditions को consider करके देना चाहिए. और homeopathy जो होती है is always good because it is a method based on natural and individualized approach. Timely inventions and treatment can help children cope with precocity and lead a balanced life. Yes, doctors, you can please put up your questions. Delegates, you can write your questions in chat box so that Dr. Roli can answer. Hello, ma'am. It was a good presentation. और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये बहुत कॉमन टॉपिक है आज के टाइम में. क्लिनिक में हम जनरली ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं
There are a lot of changes and hormonal changes in the society, especially this age group. तो मैम इससे कुछ रिलेटेड डाइट से रिलेटेड भी आप कोई पॉइंट ऐड कर सकते हैं? Is there any parameter for weight also? Ma'am, there are many research कि insulin resistance एक reason है because तो जो बच्चे ओबीस हैं वो डाइट मैनेजमेंट डेफिनेटली करें, फिजिकल वर्कआउट करें. मोबाइल एडिक्शन इतना ज्यादा हो गया है बच्चों में कि बाहर निकल नहीं रहे हैं. जो इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले पेशेंट्स को हम लोग बोलते हैं खाओ कम दौड़ो ज्यादा, वही हिसाब हमें बच्चों के साथ भी रखना है. फिजिकली एक्टिव रखना है. वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट टू कीप देम एंगेज इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी. जितना ज्यादा हो सके उनको खिलाओ दौड़ाओ, बस खेलते रहें दौड़ते रहें. डाइट बैलेंस ले. बर्गर पिज्जाज अगेन आर अ बिग रीजन. डाइट की वजह से मैदा जो होता है हमारा वो बहुत रोल प्ले कर रहा है. और बाकी आपको मैंने पहले भी बताया कि रेडिएशंस का इफेक्टिव स्टडीज चल रही हैं. जो टेलीफोन मोबाइल फोन से जो रेडिएशंस निकल रही हैं, आर दे आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग जेनेटिक चेंजेस स्पेशली in the hormones in the ovaries and testes which are responsible for releasing estrogen and testosterone. ये रिसर्चेस पे अभी बहुत ज्यादा काम चल रहा है. तो हर रिसर्च आर्टिकल में यही लिखा हुआ था कि more research is needed to be done on this topic. एक हमारी मेडिसिन होती है रेडियम ब्रोम, एक होती है एक्सरे. ये भी बहुत हेल्पफुल है इन प्रिकॉसिटी के केसेस में. रेडियम ब्रोम में तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं प्रिकॉसिटी के केसेस. देयर आर मेडिसिन्स इन होम्योपैथी व्हिच हेल्प. बट अगर मैं यही कहूंगी फिर से कि एलोपैथिक के गोनाडोट्रोपिक रिलीज हार्मोन के एगोनिस्ट ना ले, क्योंकि वो कई बार देखा गया है कि फिर उसमें एक्चुअल एज पे भी नहीं आती है प्यूबर्टी. उस समय तो आप एगोनिस्ट देते हैं, बट द थिंग इज दैट कि उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट यही रहता है कि 12-13 साल की उम्र में जब प्यूबर्टी आनी चाहिए गर्ल्स को, वो तब भी नहीं आती, वो प्रोलॉन्ग होती चली जाती है. इट इज ऑलवेज एडवाइसेबल नॉट टू गो फॉर दिस. अगर हो रहा है तो लेट इट हैपन, मैनेज योर चाइल्ड साइकोलॉजिकली और चूज फॉर होम्योपैथी. And also in vitro problems are also there during pregnancy. Medicines taken by mother, so many ultrasounds, and all this causes this problem. Plus lifestyle of many new generation girls also causes all these problems. मैम एक पॉइंट है, जनरली ऐसे मैंने कहीं रीड किया था कि एज जो फीमेल की जो वेट है, अगर बच्चे का वेट 35 प्लस हो जाता है बहुत जल्दी, as they crosses 35 years of weight, so body start changing that hormones that it is ready to develop. That's why मैंने ये क्वेश्चन रखा. मैंने कहीं रीड किया था रिगार्डिंग दिस ऑल्सो कि अगर जैसे ये जो एज ग्रुप होती है कि पेरेंट्स आर बहुत क्वेश्चन करते हैं कि भाई बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा, तो जनरली हम बोलते हैं कि आप वजन पे नहीं हाइट पे ध्यान दो. इट हैज टू बी कांस्टेंट फॉर इयर्स. अगर वो 1-2 किलो भी बढ़ रहा है तो देन इट इज ओके, बिकॉज वेट इंक्रीज होना इज मोर, वो प्रिकॉसिटी के लिए हम जा रहे हैं. 35 प्लस जैसे ही जाएगा बॉडी में फीमेल हार्मोन्स चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी से. एग्जैक्टली प्रिकॉसिटी बिकॉज इसमें गोनाडोट्रोपिक रिलीज हार्मोन नहीं निकल रहा है अभी हाइपोथैलेमस, लेकिन ओबेसिटी होने की वजह से, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से ओवरीज ने एस्ट्रोजन निकालना स्टार्ट कर दिया. Anybody wants to ask question to Dr. Roli ma'am? You can write down in chat box so that it is an open conversation. Any points you want to share regarding this topic? अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है. ठीक है मैम. Does extra physical activity also plays a role in it? Dr. Roli? Roli ma'am, are you able to listen? I'm सुनीता मैम ने क्वेश्चन किया था अबाउट द फिजिकल एक्टिविटीज को लेके. Yeah, ma'am. Yeah. Repeat the question, ma'am. Dr. Sunita ma'am, can you repeat the question please?
audible? You are audible, ma'am. You are audible. No. Yeah. I want to ask, does physical activity also plays a role in early puberty? हाँ, फिजिकल ऐसी कोई रिसर्च सपोर्ट नहीं करती है कि जो बच्चे बहुत ज्यादा स्पोर्टिक होते हैं या खेलते हैं उनमें प्रिकॉसिटी जल्दी आ जाती है। ऐसी रिसर्चेस बहुत कम है जिन्होंने और जितनी भी हैं तो ये देखा गया है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एक्टिविटी एंड दे बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। Okay. Thank you. Thank you, Dr. Roli ma'am. Devisha ma'am, we can ask Prajapati sir to felicitate her, please. Yes. So a big thank you, Roli, our ever working member of you. And it's my honor to extend our heartfelt gratitude. So on behalf of those present here today, ABCA, we present the certificate to Dr. Prajapati, this certificate to Dr. Premani for this wonderful capacity webinar. Thank you, ma'am. It's an honor to be here. To guide you and long experience of it. Dr. Prajapati sir. रोलिंग आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन सुना और इसकी जो जानकारी आपने दी मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, एक बात पॉइंट नोट कर रहा था। ये इसको हम बड़े स्तर पर करना चाहेंगे, जो आपका विषय है ना ये बहुत अच्छा है और आज की डेट में हम को जो पीसीओडी है उसके साथ मिला के इसको हम करेंगे, क्योंकि हर 5वीं बिटिया के आज की डेट में फिब्रॉइड, सिस्ट, इरेगुलर मेंसेस वो आ रहे हैं। इसके कारण इसका निदान और इसका होम्योपैथी में इसका इलाज तो बहुत अच्छी ये पहल है, क्योंकि आज की डेट में ये बहुत ज्यादा चल रहा है और हम अवेयर कर पाएंगे आप जैसे लोगों के माध्यम से, वो बहुत अच्छा रहेगा और इस पे हम बड़ा स्तर का कार्यक्रम करेंगे, मतलब बड़ी इस पे सीएमई करेंगे। वाकई में इसको बहुत अच्छा है। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप एक मजबूत स्तंभ है, एक पिलर है, सॉलिड पिलर है होम्योपैथिक के लिए। मैं एबीसी का नाम नहीं लूंगा, होम्योपैथिक के लिए। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. So before moving forward, I would like to take this opportunity to invite Dr. Neha Kathuria, President of ABCA, to say few words. Just few words, Dr. Neha. Thank you so much, ma'am. Thank you, Roli ma'am. Thank you, Prajapati sir. Yes, Roli ma'am, it was a great presentation. It is a very important topic, as sir said, कि ये बहुत ज़्यादा important है आज के टाइम में, because it's a lifestyle disorder. So वो चीज को हम आगे लेके जाएंगे for more promotion about this, about the regarding the health and हम awareness फैला सकते हैं regarding this. So ये बहुत अच्छा topic है. Thank you for explaining well regarding its physiological aspect also. Thank you. Plus you have explained and give the therapeutics of homeopathy also, so that we can go through these medicines and in a detailed understanding of related to this topic. Thank you, ma'am, and thank you, sir. Thank you, everyone. I like to take only 2 to 3 minutes regarding discussion about कि ABCA क्या कर रहे हैं और ABCA का platform क्या है, so that awareness regarding ABCA platform can reach up to many people. And जो लोग भी ये video आगे recording भी सुनेंगे उनको भी समझ आएगा कि what ABCA is doing on a ground scale in promotion of homeopathy. So सबसे पहले ABCA जो है वो 2002 में डॉक्टर प्रजापति सर, फाउंडर एंड डायरेक्टर, उन्होंने इसकी नींव रखी थी और वहां से ये जर्नी शुरू हुई ABCA की. Last year 7th July the team has been generated by him. ये टीम regular basis पे undoubtedly with so much hard work they are doing it to make ABCA on a different scale regarding promotion of homeopathy. हमारी जो टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है.
सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट, लेटेस्ट अचीवमेंट थी कि हमारी ABCA ने अभी अपनी प्रेजेंटेशन रखी हेल्थ मिनिस्टर सर के सामने, डॉक्टर पंकज सिंह के सामने, एंड इट वाज अ सक्सेसफुल मीटिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर DC प्रजापति। ये पूरी टीम गई थी, वहां पर हमने रिगार्डिंग द होम्योपैथी प्रमोशन के बारे में बात करी, एंड इट इज अ वेरी फ्रूटफुल कन्वर्सेशन देयर, एंड दिस विल गोइंग टू हेल्प ऑल द होम्योपैथ्स, चाहे वो अपकमिंग होम्योपैथ्स हैं, वी हु आर बीन प्रैक्टिसिंग फॉर इयर्स, प्लस हमारे एज अ होम्योपैथिक फ्रेटर्निटी हम होम्योपैथी को बहुत आगे ले जाने वाले हैं। अपलिफ्टमेंट ऑफ होम्योपैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा मेजर एम है। वी हैव वेरी क्लियरली शो द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ABCA। हम जुड़े क्यों हैं, हमारा प्लेटफॉर्म क्या है और हमारे एम्स क्या है, जो हम कॉन्स्टेंटली हेल्प कर रहे हैं लोगों को और होम्योपैथ्स को साथ में जोड़ने के लिए और होम्योपैथी को अपलिफ्ट करने के लिए। तो फॉर हमारा एम है कि हम सपोर्ट करें होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स को, विच वी आर कॉन्स्टेंटली डूइंग सिंस ईयर्स, एंड फ्रॉम लास्ट ईयर वी आर डूइंग इन अ वेरी हायर स्केल। सपोर्ट असिस्टेंस है, आपस में एक दूसरे को हम असिस्ट करते हैं, न्यू कैंडिडेट्स और न्यू डॉक्टर्स को भी सपोर्ट करते हैं अंडर ABCA। सेकंड इज द लीगल एंड द operational assistance, offering legal support, guidance in establishing the clinics. This is the process which we are going in. Plus legal help, बहुत बड़ा major aim है ABCA का, because we have a legal background as Dr. DC Prajapati is advocate also, he has a medical legal background, और इसके बारे में हमारे upcoming event में आपको और पता चलेगा। 6 अप्रैल को जो हमारा इवेंट होने वाला है, जब हम अपने फादर ऑफ होम्योपैथी के बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे, उस दिन वी हैव अ वेबिनार आल्सो, वी हैव अ सेमिनार आल्सो अंडर डॉक्टर DC प्रजापति, टॉकिंग अबाउट द मेडिको लीगल issues and medical legal assistances regarding homeopath and uplifting them and giving knowledge कि क्लिनिक कैसे चलाना है, अगर प्राइवेट क्लिनिक में क्या इश्यूज है, आप लोग अपने क्वेश्चंस के साथ प्लीज बी प्रिपेयर्ड, सो दैट उस दिन एक बहुत fruitful and एक one-to-one conversation हो सकता है। We will have a time to discuss about medical legal things. जो भी आपके issues है regarding any registration, regarding the setup of the new clinic, regarding what kind of certificates we need, regarding how the registration process goes on, everything can be cleared, और आप लोग किसी भी लेवल पे आकर हमसे बात कर सकते हैं, so that we can guide you and go further. Second, continued medical education, which we are doing regularly according to the seminar and webinars. This is our second webinar in this month. So continuously we are trying to give knowledge to everyone. Plus we are camps and public awarenesses, which is also constantly we are doing. This is the main objective. I'm just telling about the objectives which we are constantly working on. Advocacy against the anti-homeopathic policies, that is also important. आज ही हमारे ग्रुप में वीडियो शेयर होती है anti-homeopathic languages and the practices which has been done, और हमारी होम्योपैथी के अगेंस्ट जो लोग बोलते हैं उसके लिए हम रेस करते हैं क्वेश्चंस, वीडियो रिलीज करते हैं एंड लीगैलिटीज पे भी जाते हैं कि अगर किसी ने कोई चीज अगेंस्ट होम्योपैथिक प्रैक्टिस बोला है, we should be alert to ask questions and give them proofs and stop this kind of propaganda to defame homeopathy. So that is very important कि हम सबको जुड़कर साथ में काम करने की जरूरत है, और जब तक हम सब साथ में नहीं जुड़ेंगे, won't able to solve this problem and this problem will lead further problems. हमारी ही खुद की fraternity को इकट्ठा होके ये चीज करने की जरूरत है, and we have to raise question that this is homeopathy जो आप लोग प्रमोट कर रहे हैं in a wrong way is absolutely wrong and bogus. So we need to understand all the pathies that homeopathy is the most clear, most favorable and most easily available medicine for the patients, so that they can get cure, they can get treatment very easily. And homeopaths जिस वे में holistic way में treatment करते हैं वो कहीं नहीं है. The case taking which we do is amazing. We understand that ये हम सबका main कहते हैं ना, हमारा it's a very important thing for us. It's like a boon to us. So the way we treat the cases, we do practice is absolutely different from other people, and it is very nice. हर पैथी में अपने आप को प्राउड फील करना है, अपने आप को प्रूव करना है, और वी आर डूइंग अमेजिंगली. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू डॉक्यूमेंट आवर केसेस आल्सो, सो दैट वी कैन शो दिस कि दैट्स देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस व्हिच comes in our practice. आप सब बहुत senior homeopaths हैं, you have solved thousands of cases. Let's come together and show that homeopathy works wonders. And next is the
अगेन इम्पोर्टेंट इज कि हम अपने मोबाइल वैन के लिए वर्क कर रहे हैं अगेन फॉर द होम्योपैथिक प्रमोशन and taking the homeopathy to the very ground scale, to the lower level scale, and giving medicines to them. Publication of magazine. One magazine has been published. We are under the process of second month. So come forward. All the doctors come forward with your articles and publications so that we can regenerate one more edition regarding the magazine. And the most important is digitalization of your practice, which is also one of the main important aim of ABCA's Ayushman Bharat Digital Mission, connecting the doctors with ABDM and helping the doctor practicing this digitally by providing free subscription of DRF-C4 software for 200 doctors. This is the aim. Those who are being our members, paid members, they are getting this software also and understanding digitalization, and this is the future of practices. This is the future of health system. So we all should get upgrade to digitalize our practice. These are the basic aims and objectives of ABCA, which constantly we are working under the guidance of Dr. DC Prajapati. And we have different teams as well. We are generating the national team. बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स में टीम जनरेट हो रही है रेगुलर बेसिस पे. वर्क भी स्टार्ट हो गया है चंडीगढ़ में, हरियाणा में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, स्पेशली लखनऊ में. सो those who really want to be part of ABCA on a national team and take the responsibility and under ABCA and got wings to fly, have promotion of homeopathy under ABCA, please come up to us. We all are there to help you to generate the team at your state, at your zone or your district level. Feel free to connect with us. There are some protocols. The charges of this ABCA is regarding now the charges are 4,100 for the lifetime membership and the position holders is 6,100. This is the way we are doing our connecting people, connecting all homeopaths under one roof and giving the responsibility to them. Please become the member of ABCA and let's this family grow bigger and bigger, and we will want to spread our wings all over India, or maybe in near future we can become international also. So let's come together and spread our wings with homeopathy as well as the ABC. I hope this will help you. Thank you so much. And I would like to call Dr. Dimisha ma'am again for the further presentation. Thank you so much. Thank you, Dr. Neha. You know ABCA the best. Thank you so much, ma'am. Dr. DC Prajapati, who has been the guiding force behind ABCA, leading with his vision, dedication, and commitment to excellence. Under his leadership, ABCA has grown tremendously. And that we have heard from Dr. Neha, how ABCA has grown it with all the speed. So I would like to request Dr. DC Prajapati to say a few words. Dr. Prajapati, sir. जी डॉक्टर दिमिशा जी. जी सर. देखिए, ये जो परिवार है हमारा, ये कहीं ना कहीं देश का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता है. कैपेसिटी है इनके अंदर. जो अभी टीम है, जो होम्योपैथी में जो चल रहा है और उसको हमें अच्छा करने का जो हमने प्रण लिया है उसे आगे बढ़ा रहे हैं. जैसे अभी CME करी है अभी, उसके अलावा हम जो डॉक्टर नेहा ने जो बातें कही हैं वो हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए, होम्योपैथ को आगे बढ़ाने के लिए मदद करेगी. तो अगले जो हमारे लेक्चरर हैं उनको आप आमंत्रित कर सकते हैं. ओके सर. डॉक्टर सुखजीत कौर जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. बहुत बहुत धन्यवाद. सर डॉक्टर शिल्पा चावला. शिल्पा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. Thank you, sir. Thank you so much. Good afternoon, everyone. So I extend my warm welcome to all of you to this insightful webinar today.
Today we are happy to have with us Dr. Shilpa Chawla, who will be sharing her valuable insights on psoriasis and homeopathy. Psoriasis, as we know, is a challenging condition, and homeopathy offers a promising approach to its management. Dr. Shilpa Chawla is a homeopathic skin specialist, clinical cosmetologist, and nutritionist. She is the founder and chief consultant at Dr. Chawla's Homeocare Aesthetic and Diet Clinic, Zirakpur, Mohali, Punjab. Please welcome Dr. Shilpa Chawla. Thank you, doctor. Okay, before we start, psoriasis, it is an autoimmune disease. All of us know. And what is an autoimmune disease? An autoimmune disease is where your body starts fighting with your own cells, right? The body starts behaving in very haphazard manner and thinks its own cells to be like a foreign body and starts fighting against it. So in psoriasis, क्या होता है कि आपके स्किन के सेल्स जौन से हैं उसको इम्यून सिस्टम जौन सा इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करके उसके अगेंस्ट फाइट करना शुरू कर देता है एंड इट इम्पैक्ट्स सेल्स कॉल्ड केराटिनोसाइट्स, जिसके कारण से क्या होता है कि आपके सेल का जो टर्नओवर है, जो स्पीड है उसके ग्रो करने की और रीजनरेट करने की, वो ऑलमोस्ट 4-5 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है. जो चीज 2-3 महीने में होनी है वो रिड्यूस होके विद इन डेज होनी शुरू हो जाती है. तो दैट इज वाई सोरियासिस की पिक्चर आपको देखने को कैसे मिलती है कि इट शोज इन्फ्लेमेटरी पार्ट, ऑल्सो प्लेक्स बनना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो जनरेशन ज्यादा हो रही है तो वो थिकनिंग होने लग जाती है, प्लेक्स बनते हैं. इसके अलावा और क्या होगा, साइमल्टेनियसली वो शेडिंग भी हो रही है स्किन की, और उसके साथ में जो है अल्सरेशन हो सकती है, कई बार इन्फेक्शन हो सकती है. तो ये इसका, और जब हम उसको रिमूव करते हैं इट शोज लाइक अ सिल्वर स्केल. ठीक है, अंडरनीथ रेडनेस होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, और ऊपर जो है वो सिल्वर स्केल्स की फॉर्म के अंदर आपको जो पिक्चर है स्किन की देखने को मिलेगी. आज के टॉपिक में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से थ्रू जर्मन न्यू मेडिसिन को की अंडरस्टैंडिंग से हम सोरियासिस को समझ सकते हैं और उसको अपनी होम्योपैथिक प्रैक्टिस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं. First of all, I would like to ask कि is my screen visible? Slides दिख रही हैं? नहीं. Is it now visible? Yes. Okay. So we have already discussed what is psoriasis. Next is what are the causes of psoriasis. सोरियासिस में स्पेसिफिक कॉज नहीं होता, कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज बाय आपका जो बॉडी है वो हैफेजेड मैनर के अंदर इतना बिहेव कर रहा है और इम्यून सिस्टम क्यों डिसफंक्शन हुआ है, इसका कोई पर्टिकुलर कॉज नहीं है अगर हम कन्वेंशनल मेडिसिन के थ्रू भी जाएं. बट इट इज फाउंड कि कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री के अंदर ऑलरेडी आपका कोई डिजीज इस तरीके का ऑटो इम्यून प्रेजेंट है. जेनेटिक म्यूटेशंस, जैसे कि आजकल वैक्सीनेशंस हुई हैं, उसके कारण से कई बार क्या होता है जीन म्यूटेट कर जाता है, देन ऑल्सो आपकी बॉडी के नॉर्मल सेल्स को वो एज अ फॉरेन सब्सटेंस समझकर इस तरीके से ओवर एक्टिवली बिहेव कर सकता है. इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन के अंदर सोरियासिस के केस में क्या होता है कि आपके टी सेल्स जो हैं वो अटैक करते हैं हेल्दी स्किन सेल्स को और इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करके रैपिड स्किन सेल टर्नओवर कर देते हैं और स्केलिंग करना शुरू कर देते हैं. ट्रिगर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, कुछ एनवायरमेंटल ट्रिगर्स हो सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन थ्रोट की हुई तो दैट मे रिजल्ट इनटू गटेड सोरियासिस व्हिच वी विल बी डिस्कसिंग फर्दर. स्ट्रेस इज द मेन कॉज, जिसको हम आज बहुत ही डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे. इसके अलावा कोई भी स्किन इंजरी हो, कट्स, सनबर्न्स या ट्रॉमा हो, देन it might also induce psoriasis. वेदर कंडीशंस हो सकती हैं कि आपने देखा होगा काफी पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं स्पेसिफिकली विंटर सीजन में इंक्रीज होता है या जब भी वेदर चेंज स्प्रिंग के अंदर आता है. तो यस, कोल्ड वेदर जो है दैट मे ट्रिगर इट, क्योंकि स्किन ऑलरेडी ड्राइनेस के टुवर्ड्स जा रही होती है तो स्केलिंग और ज्यादा मार्क नजर आती है और प्रॉब्लम पेशेंट को ज्यादा होती है. इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस जैसे कि लिथियम
जो कि एंटीसाइकोटिक ड्रग है, या बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो इसको एग्रवेट कर सकते हैं कंडीशन को। स्मोकिंग और अल्कोहल का इंटेक जो है वो सोरियासिस को बढ़ा सकता है। ओबेसिटी और कुछ डाइट स्पेसिफिकली फूड्स जो से हैं वो फ्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि आपका एक्सेसिव शुगर इंटेक जो है उसका फ्लेयर इस सोरियासिस को इंक्रीज कर सकता है। हार्मोनल चेंजेस स्पेसिफिकली फीमेल्स के अंदर 2 टाइम के ऊपर ज्यादा चेंज देखा जाता है, प्यूबर्टी के टाइम पे और मीनोपॉज के अंदर जो सडन हार्मोनल शिफ्ट होता है, दैट माइट गिव यू अ कंडीशन ऑफ स्ट्रेस एंड दैट मे इंड्यूस सोरियासिस। इसके अलावा कुछ हेल्थ कंडीशंस कोमॉर्बिडिटीज आ सकती है, जैसे इफ यू आर डायबिटिक तो यस सोरियासिस जो है वो और ज्यादा ट्रिगर कर सकता है, या फिर जॉइंट इशू साथ में आता है जिसे हम सोरियाटिक आर्थराइटिस कहते हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के अंदर ये साथ में एज अ कोमॉर्बिडिटी देखा जा सकता है। देन कम्स सिम्टम्स क्या है, आई हैव जस्ट टच्ड इट। स्किन सिम्टम्स में क्या है, प्लैक्स बनते हैं, इन्फ्लेम्ड पैचेस जिसकी सिल्वरी वाइट स्केल्स होते हैं, तो स्केलिंग, इचिंग, ड्राई स्किन, और उसके अंदर क्रैक्स और ब्लीड कर सकते हैं। इसके अलावा इफ इट इज इन्वॉल्विंग योर नेल्स तो उसके अंदर डिप्रेशन दिखे जा सकते हैं, डिस्कलरेशन, थोड़ा येलोइश ब्राउनिश स्पॉट्स दिख सकते हैं, थिकनिंग हो सकती है, और नेल कई बार सेपरेट ही हो जाता है अपने आप, ठीक है। समटाइम्स ये जो है वो ट्रॉमेटिक कंडीशन के कारण से भी नेल में इंड्यूस हो जाता है। स्कैल्प सिम्टम्स के अंदर क्या है, सिल्वर स्केल्स स्कैल्प पे देखे जाएंगे, रेडनेस एंड इन्फ्लेमेशन, और उसके कारण से हेयर लॉस हो सकता है। देन कम्स जॉइंट सिम्टम्स, आपका सोरियासिस स्किन के ऊपर है, अलोंग विद इट जॉइंट सिम्टम्स आ सकते हैं जिसमें पेन और इन्फ्लेमेशन होती है, जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग आती है और मोबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। इन जनरल सिम्टम्स जो आ सकते हैं वो फटीग है और बर्निंग सेंसेशन है। देन कम्स टाइप्स ऑफ सोरियासिस। फर्स्ट इज प्लैक सोरियासिस। प्लैक सोरियासिस जो है वो टिपिकल फॉर्म ऑफ सोरियासिस है। आप इसके अंदर सिंपल सिल्वरी स्केल्स भी देख सकते हैं, थिकन स्किन भी देख सकते हैं, और अंडरनीथ जब इसको रिमूव करेंगे तो आपको रेडनेस, रेड पैचेस दिखेंगे। गटेड सोरियासिस होता है जिसके अंदर लीजन्स जो हैं वो ड्रॉप की तरह होते हैं, जैसे कि एक ड्रॉप है और रैंडम ये कहीं पे भी स्प्रेड आउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर कि यहाँ पर रैंडम रेड कलर के लीजन्स हैं विच आर वेरी स्मूथ एंड लाइक अ ड्रॉपलेट। इनवर्स के अंदर क्या होता है कि इनवर्स ज्यादातर आपके स्किन फोल्ड्स में होता है और बहुत ही स्मूथ होता है, और ये मिमिक करता है आपका फंगल इन्फेक्शन। ये सभी जो फॉर्म्स हैं ये मॉडरेट टू सिवियर फॉर्म हो सकते हैं, यानी कि इसे ट्रीट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी। देन कम्स पुस्टुलर सोरियासिस। व्हेन इट गेट्स इन्फेक्टेड तो आपको जो भी लीजन्स हैं सोरियासिस के उसके सराउंडिंग के अंदर इन्फेक्शन के थोड़े से इरप्शंस नजर आ सकते हैं जिसके अंदर पस डिस्चार्जेस होंगे। इसके अलावा है एरिथ्रोडर्मिक, ये सबसे स्वेयर फॉर्म है और इसका प्रोग्नोसिस बहुत ही पुअर होता है। ज्यादातर इसका कॉज माना जाता है कि जब सडन विड्रॉल होता है किसी भी स्टीरॉयड का, तो सडन विड्रॉल के कारण से जो सोरियासिस है वो पूरी बॉडी को आपके कवर कर लेता है, और इसके अंदर बेस जो है वो रेड होगा और बहुत ही ज्यादा थिक प्लेक्स और सिल्वर आपको शेडिंग दिखेगी इसके अंदर। देन कम्स नेल सोरियासिस, जो मैंने आपको पहले बता दिया है कि पिटिंग होगी, कलर डिस्कलरेशन हो सकता है, येलो और ब्राउन कलर। इसके अलावा कंप्लीटली नेल जो है वो रिमूव हो सकता है। इसके बाद आता है स्कैल्प सोरियासिस एंड देन पामोप्लांटर सोरियासिस। पामोप्लांटर सोरियासिस को ज्यादातर हम कंफ्यूज कर देते हैं कि ये क्रैक्स आ रहे हैं पेशेंट को, लेकिन आपको इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्लियरली करना आना चाहिए, और जब आप इसे रिमूव करेंगे तो अंडरनीथ इसके अंदर ब्लीडिंग पॉइंट और साथ में आपको रेडनेस जो और इन्फ्लेमेशन मार्क नजर आती है, और ये बहुत ही ज्यादा थिकनेस होती है इसके अंदर और बहुत रैपिडली शेड ऑफ होती है स्किन। तो इससे आप इसको रूल आउट कर सकते हैं कि ये सिंपल क्रैक है या पामोप्लांटर सोरियासिस है। देन कम्स कौन सी लेयर इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। एज वी ऑल नो हमारे स्किन जो है वो 3 लेयर्स से बनी हुई है। फर्स्ट इज एपिडर्मिस जो कि आउटर लेयर होती है, देन इज डर्मिस एंड देन हाइपोडर्मिस। तो इसके अंदर सोरियासिस में क्या होता है कि आपका आउटर लेयर मैक्सिमम इन्वॉल्व होता है जिसे हम कहते हैं एपिडर्मिस, और इसमें क्या होता है कि एपिडर्मिस में यहाँ ओवर प्रोडक्शन होने लग जाती है केराटिनोसाइट्स की, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं आपका केराटिन प्रोड्यूस करने के स्किन, हेयर और नेल्स के।
यहाँ पे इन्फ्लेमेशन आती है और रैपिडली केराटिनोसाइट्स जो है वो मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं, जिसके कारण से थिक स्किन जो है और स्केली पैचेस आने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा स्ट्रेटम कॉर्नियम के जो कि आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस की, वो इन्वॉल्व होती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है प्लेक्स के लिए। डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस बहुत रेयरली इन्वॉल्व है इन केस ऑफ सोरियासिस। समटाइम्स इन्फ्लेमेशन जो है थोड़ा सा डीप जा सकती है डर्मिस तक। इन दैट केस इन्फ्लेमेशन के कारण से बर्निंग और इचिंग और बहुत ज्यादा पेशेंट जो है वो अनईजी फील कर सकता है, क्योंकि डर्मिस लेयर जो है उसके अंदर ज्यादातर ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं और कनेक्टिव टिश्यू होता है। हाइपोडर्मिस जो है वो रेयरली इन्वॉल्व है। इन स्वेयर केसेस इट माइट गेट इन्वॉल्व। और एज यू ऑल नो, हाइपोडर्मिस बेसिकली क्या है, फैट है और कनेक्टिव टिश्यू है जो आपकी मसल्स को और बोन्स को प्रिवेंट कर रहा है। इसके बाद आता है जीएनएम अंडरस्टैंडिंग हमारी। एज यू मस्ट बी नोइंग कि जर्मन न्यू मेडिसिन क्या है, बेसिकली जो डॉक्टर हैमर ने हमें दी थी, और उनके अकॉर्डिंग ये था कि कोई भी हमारे बॉडी के अंदर डिजीज अगर आ रहा है, दैट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ अनरिजॉल्व्ड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। तो बेसिकली उन्होंने आपके इमोशंस को और आपके ब्रेन को और आपके फिजिकल मैनिफेस्टेशंस को रिलेट किया, और थ्रू रिसर्च वर्क उन्होंने ये शो किया कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट से आप जो कि अनरिजॉल्व्ड है आप गो थ्रू होते हो, तो वो ब्रेन के अंदर सर्टेन पार्ट्स को इम्पैक्ट करता है और उसके कारण से एक सर्टेन फॉर्म ऑफ फिजिकल मैनिफेस्टेशन आती है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट सोरियासिस, तो ज्यादातर इमोशनल अनरिजॉल्व्ड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट इज मोर रिलेटेड टू रिजेक्शन कॉन्फ्लिक्ट। रिजेक्शन कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि जब आप इमोशनली रिजेक्टेड फील करते हैं, सोशली एक्सक्लूडेड फील करते हैं, या ऐसा फील करते हैं कि लोग आपको अटैक कर रहे हैं और आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सो इट माइट इन्वॉल्व फीलिंग अनवांटेड, अनलव्ड या आइसोलेटेड। इसके बाद आता है या फिर अटैक की, जैसे हमने बात की कि कोई आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जब आप ऐसा परसीव करेंगे और अपने आप को एक्शन देने की कोशिश करेंगे, देन सोरियासिस इंड्यूस हो सकता है, क्योंकि स्किन जो है वो एक बैरियर का काम करती है आपका आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड के अंदर। तो जब भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, वो बैरियर सबसे पहले इम्पैक्ट होगा, और उसी की जो आउटकम है वो हम सोरियासिस की फॉर्म में देख सकते हैं। सोरियासिस के अंदर क्योंकि स्किन जब भी इन्वॉल्व होती है, वी ऑलवेज टॉक एज पर जीएनएम, इट इज सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट। कि कहीं पे भी आपको लगा है कि आप किसी, या तो कोई ऐसी चीज थी जिसको आप पहनना चाहते थे और वो आपको मिल नहीं पाई, या आप उससे दूर हो गए। आपके पास थी लेकिन आप दूर हो गए। वो एक ह्यूमन बीइंग हो सकता है, आपके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, या कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज हो सकती है, या आपका कोई एम्बिशन हो सकता है जो कि आपको नहीं मिल पाया। दो फेजेस इसके अंदर साइमल्टेनियसली चलते हैं। जब भी हम जीएनएम के अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट स्टडी करते हैं तो उसके दो फेजेस होते हैं। वन इज एक्टिव। एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट वो होता है जब आपका इमोशनल ट्रॉमा जो है या इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ऑनगोइंग प्रोसेस के अंदर है, यानी कि अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है, अनरिजॉल्व है। आपने रिजेक्टेड फील किया या अटैक फील किया एंड इट इज ऑनगोइंग, यानी कि अभी वो प्रोसेस चल रहा है और आपके मन के अंदर वो फीलिंग जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। ये जो ब्रेन है, जब आपको ऐसा फील होता है तो ब्रेन जो है वो स्किन सेल्स को सिग्नल सेंड करता है एपिडर्मिस के अंदर, रिजल्टिंग इन थिकनिंग एंड इन्फ्लेम्ड पैचेस, ताकि एक तरह का ये मैसेज होता है कि अपने आप को प्रिवेंट करने की जरूरत है। तो वो एक थिकनिंग साइकोसिस स्टेट के अंदर आ जाता है। अगर ये चीज वर्सन हो और आप डिस्ट्रक्टिव मोड में जाएं तो इट माइट गेट कन्वर्टेड इनटू सिफिलिटिक स्टेज, जहां पर आपको अल्सरेशन, ब्लीडिंग, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। इसके बाद आता है आपका हीलिंग फेज, जहां पर आपका वन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट विच वाज गोइंग अर्लियर वो रिजॉल्व हो चुका है। रिजॉल्व का मतलब होता है कि या तो आपने उन नेगेटिव इमोशंस को लेट गो कर दिया है या उनको एक्सेप्ट कर लिया है और अपनी सेल्फ वर्थ पहचान कर अपनी उस रिजेक्शन और अटैक को डील करना सीख लिया है। तो ऐसी स्टेट के अंदर क्या होगा कि बैरियर जो है वो हील होना शुरू हो जाता है और यहाँ पे सिर्फ माइल्ड इन्फ्लेमेशन दिखेगी और जो पिछली स्किन अनहील्ड थी वो पीलिंग
उसकी दिखेगी। तो ये सेकेंड स्टेज है। अब जब ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को, तब हमारे को सोरियासिस की कंप्लीट पिक्चर देखने को मिलती है, जिसमें हम कहते हैं कि ऊपर से नीचे से स्किन बनी जा रही है और ऊपर से पील ऑफ हुई जा रही है। पील ऑफ होने का मतलब है कि इट इज बिकॉज ऑफ अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज ऑफ रिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट जिसको आपने एक्सेप्ट कर लिया है। सो की टेक अवे क्या है इसमें से कि सोरियासिस जो है वो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से होता है, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू फीलिंग रिजेक्टेड और अटैक्ड। दो साइमल्टेनियसली फेजेस चल रहे हैं, वन इज एक्टिव एंड वन इज हीलिंग फेज। ये दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं और हमारे को कंप्लीट पिक्चर ऑफ सोरियासिस मिलती है। देन आई हैव ट्राइड टू जॉट आउट ऑल द रूब्रिक्स ऑफ डिल्यूजन बेस्ड ऑन द कॉन्फ्लिक्ट जो हमने जीएनएम के अंदर पढ़े हैं। वन इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सेपरेशन, जहां पर एक इंसान को लगता है कि मैं अकेला हूं या मुझे अकेला छोड़ दिया गया है। तो उसके लिए रूब्रिक्स जो हमने लिए हैं, वन इज डिल्यूजन सेपरेटेड ही इज, डिल्यूजन अबेंडेड और forsaken, delusion cast away. Then अगर suppose if it is disappointment in love, तो ailments from disappointment in love ले सकते हैं, या being forsaken, grief, silent grief, delusion, neglected she is, grief, forsaken feeling. हम कोशिश करते हैं कि ailments from as a first rubric ना उठाएं because it is a psychotic rubric, और वी ट्राई ऑलवेज, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज है तो हम हमेशा फर्स्ट रूब्रिक जो है वो सिफिलिटिक उठाने की कोशिश करते हैं। देन दैट गिव्स यू अ मोर अप्रोप्रिएट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इसके बाद आता है कि अगर सेल्फ डिवैल्यूएशन के अंदर पेशेंट चला गया है कि बार बार किसी को बोला जा रहा है कि आपसे ये काम होता ही नहीं है, तो उसको फीलिंग आती है कि मैं वर्थलेस हूँ, या डिल्यूजन डिस्पाइज्ड ही इज। डिस्पाइज्ड फीलिंग का मतलब है कि हर कोई मेरे से नफरत कर रहा है, हेट कर रहा है। डिल्यूजन गिल्टी ऑफ अ क्राइम, सेल्फ डिवैल्यूएशन, उसको हर चीज के अंदर अपने आप की गलती लग रही है। डिल्यूजन रेच्ड ही इज, एक रूब्रिक होता है डिल्यूजन अगली शी इज, और एक है डिल्यूजन रेच्ड ही इज। दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है कि जो रेच्ड की फीलिंग है दैट इज मोर पुअर इन क्वालिटी एंड एबिलिटी, और अगली इज मोर रिलेटेड टू योर फिजिकल एट्रीब्यूट। डिल्यूजन डर्ट वन इज, मतलब मैं जो है वो गंदगी हूं, किसी के दिमाग में अगर ऐसा आता है तो दैट इज डिल्यूजन डर्ट वन इज। डिस्पेयर अबाउट वंस ओन पोजीशन इन सोसाइटी, यानी कि उसको ज्यादा कंसर्न जो है वो अपनी सोशल पोजीशन का है, या लो सेल्फ एस्टीम। एज ए जर्नल रूब्रिक भी हम ले सकते हैं। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म एंड ह्यूमिलेशन, दूसरा जो है वो ह्यूमिलेट कर रहा है या बार बार मेरी गलतियां निकाल रहा है। एलिमेंट्स फ्रॉम ह्यूमिलेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रोचेस, डिल्यूजन क्रिटिसाइज्ड ही इज, रिजेक्टेड ही इज, परसिक्यूटेड ही इज, यानी कि हर कोई मेरे साथ गलत कर रहा है और बहुत क्रूअल वे में कर रहा है। ज्यादातर जो लोग कंप्लेंट करते हैं कॉन्स्टेंटली ऑफिस पॉलिटिक्स की, अगर आप देखेंगे तो वहां पर हम डिल्यूजन परसिक्यूटेड ही इज रूब्रिक ले सकते हैं, अगर वो पेशेंट जो है अकॉर्डिंगली हमारे को डिस्क्राइब कर रहा है पोजीशन। डिल्यूजन लाफ्ड एट ही इज, एलिमेंट्स फ्रॉम स्कॉर्न फीलिंग्स, एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन, डिल्यूजन रिडिक्यूल्ड ही इज। इट इज ऑलमोस्ट सेम, लाफ्ड जो है और रिडिक्यूल्ड काफी मैच करता है, लेकिन रिडिक्यूल्ड जो है दैट इज मोर अबाउट मॉकिंग, किसी का तंज मतलब कस के मजाक उड़ाना। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फीलिंग डर्टी, वन इज डिल्यूजन इम्प्योर ही इज, डिल्यूजन डर्टी ही इज। डिल्यूजन डर्टी ही इज का के लिए मैं एक केस यहाँ पे कोट करना चाहूंगी। आई हैड अ पेशेंट ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसने मेरे को स्पेसिफिकली ये फीलिंग बताई कि मेरे को बहुत गंदा लगता है, और क्यों लगता है, उसको ओसीडी डेवलप कैसे हुआ था, उसको ओसीडी डेवलप हुआ व्हेन शी सॉ हर हस्बैंड चीटिंग विद सम अदर वुमेन। तो उसको बार बार ये फीलिंग आने लगी कि शायद मैं गंदी हो गई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉन से उन्होंने किसी और वुमेन के साथ इन्वॉल्व होकर भी मुझे बाद में टच किया, एंड शी डेवलप्ड ओसीडी आफ्टर इट। सो ऐसा कोई अगर आपको ऐसा मिले, या
कोई हिस्ट्री मिले तो आप ये रूब्रिक ले सकते हैं, या डिल्यूजन डिफाइल्ड ही इज, ठीक है, कि भी सब कुछ मेरा जौन सा है वो खराब कर दिया। फीलिंग इग्नोर्ड, अननोटिस्ड और टेकन फॉर ग्रांटेड, ये बहुत ही ज्यादा आप नोटिस करेंगे जो फीमेल्स आती हैं वो कहीं ना कहीं अपने कन्वर्सेशन के अंदर ये आपको रूब्रिक्स दे सकती हैं, जिसमें आप ये ले सकते हैं डिल्यूजन निग्लेक्टेड, डिल्यूजन सर्वेंट शी इज, डिल्यूजन अननोटिस्ड ही इज, अनइम्पॉर्टेंट ही इज और फॉरगॉटन ही इज। किसी को मतलब मैं एग्जिस्ट करता हूँ ये पता ही नहीं है मेरी फैमिली को। Conflict of feeling betrayed or cheated, ailments from deception, disappointed love, being deceived, betrayed or friendless he is. So कई बार क्या होता है कि जो पेशेंट है ना, लो सेल्फ एस्टीम है, लेकिन स्टिल वो एज अ साइकोसिफिलिटिक मैकेनिज्म अपने आप को सुपरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर दिखाते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, सो दैट उनका जो लो सेल्फ एस्टीम है वो शो ना हो। जैसे आप प्लेटिना में देख सकते हैं, तो उसके लिए रूब्रिक्स जो हम ले सकते हैं, डिल्यूजन ग्रैंडियोर ऑफ, डिल्यूजन रिच ही इज, जैसे कि सल्फर में होता है, डिल्यूजन टॉल ही इज, और एलिमेंट्स फ्रॉम वुंडेड प्राइड। देन आई हैव ऑलरेडी लाइक बिट्रेड, अबेंडन्ड और चीटेड का हमने कर लिया है। इसके अलावा फियर ऑफ इनक्योरेबल डिजीज हो सकता है, जिसमें वो मास्क, बेसिकली उसको अंदर से डर है और इसलिए वो मास्क लगा रहा है, जैसे कि आर्जेंटम नाइट्रिकम में होता है। डिल्यूजन डूम्ड ही इज, मतलब इल फेटेड की फीलिंग आना, यानी कि मेरी जो भी है मेरे साथ ही सब कुछ क्यों हो रहा है, मेरी किस्मत खराब है। डिल्यूजन ऑफ फीलिंग स्टक, ट्रैप्ड इन लाइफ, तो डिल्यूजन ट्रैप्ड ही इज और डिल्यूजन प्रिजनर ही इज रूब्रिक कैन बी टेकन। सो व्हेन वी टेक अ केस ऑफ सोरियासिस, तो हमें क्या ध्यान रखना है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द डोमिनेंट डिल्यूजन एंड मियाज्म, कौन सा है, किस स्टेज पे है सोरियासिस जो है, वेदर सोरिक सिम्टम्स ज्यादा है या साइकोटिक है या मिक्स्ड मियाज्म या ट्यूबरकुलर है, वो आपको फाइंड आउट करना है। देन आपने डोमिनेंट डिल्यूजन देखना है कौन सा है। एफोरिज्म 5 के हिसाब से अगर हम देखें, रूट कॉज ऑफ डिजीज जो है वो मियाज्मेटिक ओरिजिन का होता है, यानी कि फर्स्ट फाइंड व्हाट मियाज्म इज देयर, उसके बाद ही हमारे को सिम्टोमेटिक रिलीफ के टुवर्ड्स जाना चाहिए। 204 और 206 के अंदर भी यही कहा गया है कि जो क्रॉनिक डिजीज है उसके अंदर एंटी मियाज्मेटिक ट्रीटमेंट चाहिए। सो हाउ टू डिस्टिंग्विश इट, अगर स्किन जो है वो ड्राई स्केली है और इचिंग है, देन इट इज सोरिक मियाज्म। अगर स्किन के अंदर थिकन्ड प्लेक्स हैं और आपको इमोशंस जो हैं वो सप्रेस दिखते हैं, देन इट इज साइकोटिक मियाज्म। अगर कंडीशन जो है वो रिकरेंट है, बार बार फ्लेयर हो रहे हैं और बर्निंग बहुत ज्यादा है, देन इट इज ट्यूबरकुलर मियाज्म। अगर लीजन्स जो हैं वो डीप क्रैक्ड और ब्लीड कर रहे हैं या अल्सरेशन है, देन इट इज सिफिलिटिक मियाज्म। So based on mental and physical symptoms, choose your constitutional remedy, and if required, आप as an intercurrent remedy जो है वो anti-miasmatic नोजोड दे सकते हो, जैसे कि सोराइनम, मेडोराइनम, सिफलाइनम या ट्यूबरकुलाइनम। मेनली जो रेमेडीज यूज होती हैं सोरियासिस के अंदर, वन इज सल्फर। की नोट इसका क्या होता है कि इंटेंस इचिंग होती है, इतनी ज्यादा स्वेयर इचिंग होती है पेशेंट को कि वो स्क्रैच करता है, और स्क्रैचिंग गिव्स टेम्परेरी रिलीफ, लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म के अंदर वो इतना ज्यादा इंटेंस स्क्रैच कर चुका होता है कि वो ब्लीड करने लगता है, और ये जो इचिंग है वो ज्यादा नाइट में एग्रवेट कर जाती है। आर्सेनिक के अंदर क्या है, बर्निंग मार्क्ड होती है, और बर्निंग इज मोर रिलीव्ड बाय वार्मथ, ठीक है, वैसे उसे जलन हो रही है लेकिन गरम या हॉट एप्लीकेशन से उसे रिलीफ मिलता है, और एग्रेवेशन जो है वो कोल्ड से या वॉशिंग से उसको एग्रेवेशन होती है। आर्सेनिक के अंदर अगर हम मेंटली और इमोशनल लेवल के ऊपर देखें तो एंग्शियस और फेयरफुल और रेस्टलेसनेस बहुत मार्क दिखती है। सिमिलरली काली आर्स में भी और नाट्रम आर्स में भी हमारे को एंजाइटी मिलेगी, बट काली आर्स के अंदर हमारे को क्या है, एंजाइटी विद इरिटेबिलिटी इज मोर मार्क्ड। नाट्रम आर्स के अंदर एंजाइटी विद मेलंकोलिक बिहेवियर इज मोर मार्क्ड। सोराइनम जो है उसके अंदर इट इज मोर लाइक सल्फर, लेकिन जो सोराइनम है उसके अंदर होपलेसनेस बहुत ज्यादा होती है कि मैं ठीक होऊंगा ही नहीं। डिस्पेयर विद होपलेसनेस के अंदर सोराइनम इज द सिंगल रेमेडी।
कैलकेरिया का जो है उसके अंदर थिक एंड ड्राई स्किन होगी और मार्क्ड इनसिक्योरिटी होती है, एंशियस अबाउट ओन हेल्थ एंड सराउंडिंग, जो उनकी फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके लिए भी एंजाइटी होती है। कैलकेरिया सल्फ जो होता है उसके अंदर डिस्चार्जेस जो हैं वो इसके अंदर कांस्टेंट पस ऊजिंग होती रहेगी आपकी, ठीक है। और कैलकेरिया सल्फ मेंटली जब हम देखते हैं तो इट इज मोर लाइक लाइको, साइकोटिक पिक्चर ज्यादा शो करता है। कैलकेरिया सिलिकाटा के अंदर ड्राइनेस इज मोर मार्क्ड और डीप क्रैक्स जो है सिलिका का जो है उसमें क्या है डीप क्रैक्स ज्यादा होते हैं, तो दोनों कंबाइंड के अंदर पिक्चर जो है वो नजर आएगी। काली बाई के अंदर इट इज थिक क्रस्टी और येलोइश डिस्चार्ज होता है, लेकिन वहां पर क्रस्ट फॉर्म हो जाती है। सिमिलरली सिलिशिया के अंदर भी येलोइश डिस्चार्ज होता है, बट क्रस्ट वहां पर आपको इतनी मार्क नहीं दिखेगी, वहां डीप क्रैक्स नजर आते हैं आपको। देन कम्स काली सल्फ। सल्फ के अंदर काली सल्फ के अंदर इरिटेबिलिटी बहुत मार्क्ड होगी अलोंग विद सल्फर पिक्चर, एक्सट्रीम इचिंग एंड ड्राइनेस। कॉस्टिकम इज मोर अप्रोप्रिएट जहां सोरियाटिक आर्थराइटिस डेवलप होता है, और कॉस्टिकम के अंदर अगर हम इमोशनली देखें द पर्सन इज मोर इनटू राइट एंड रॉन्ग, एथिकल बहुत ज्यादा और आइडियलिस्टिक बिहेवियर शो करता है कि जो सही है मैं उसी का साथ दूंगा, और क्रिटिसिज्म के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। इसके बाद आता है नाट्रम्यूर, इसमें मार्क ड्राइनेस है, सॉल्ट क्रेविंग बहुत ज्यादा है। टैरेंट्यूला के अंदर बहुत रेस्टलेसनेस है, और इसके अंदर जितने भी सिम्टम्स है वो एक्टिविटी से जो है वो एमिलरेट होते हैं। पेशेंट आपको बोलेगा मैं कांस्टेंट मोशन में रहता हूँ, आई फील बेटर। टैरेंट्यूला के जो लीजन्स हैं उसमें इचिंग, बर्निंग और रेड इरप्शंस ज्यादा देखने को मिलेंगे। देन कम्स पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के अंदर डीप क्रैक्स, विंटर के अंदर एग्रेवेशन, ग्रेफाइटिस के अंदर हनी लाइक ऊजिंग होती है। सो कालीबाई और ग्रेफाइटिस के अंदर अगर आपने करना है, ऊजिंग दोनों में है, इसमें येलोइश डिस्चार्ज होता है, इसमें हनी लाइक डिस्चार्ज होता है, और क्रैक्स एंड फिशर दोनों में देखने को मिल सकते हैं। मर्क सोल के अंदर डिस्चार्जेस हो सकते हैं, अलोंग विद इट इसके डिस्चार्जेस बहुत ऑफेंसिव होते हैं। देन कम्स सिलिशिया विच आई टोल्ड यू, येलोइश डिस्चार्जेस होंगे और डीप क्रैक्स इसके अंदर आपको अंडरनीथ देखने को मिल सकते हैं। देन कम्स लेकेसिस, इसके अंदर डार्क रेड पर्पलिश लीजन्स होते हैं, और पेशेंट जो है आपको हिस्ट्री देता है स्ट्रॉन्ग सप्रेशंस के और कहीं ना कहीं सप्रेस्ड रेज के, कि बहुत गुस्सा है उसके अंदर किसी इवेंट के अगेंस्ट। देन कम स्टेफिसगेरिया के अंदर क्या होता है कि ये ज्यादातर हैंड्स एंड फेस में देखते हैं, रिप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, जहां पे पेशेंट अपने आप को आकर इमोट ही नहीं करता है, लेकिन उसको कॉन्स्टेंटली अंदर जो है वो यही फीलिंग है कि मेरे को मिसट्रीट किया जा रहा है। सो अगेन डिल्यूजन जौन सा परसिक्यूशन वाला वो आप रूब्रिक ले सकते हैं। एम्ब्रा ग्राइजिया के अंदर क्या है, अगेन पर्पलिश ब्लूइश इसके लीजन्स होते हैं, बर्निंग होती है, लेकिन एम्ब्रा ग्राइजिया जो है उसके अंदर सोशल एंजाइटी ज्यादा होती है अलॉन्ग विद रिप्रेस्ड इमोशंस। सो आई फील कि आपको ये सभी जो वट एवर आई हैव गिवन, ये आपको नेक्स्ट टाइम सोरियासिस के केस के अंदर हेल्पफुल हो पाएंगे। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you. It was a wonderful presentation. दिमिशा मैम प्लीज पहले आप बोलिए। Dr. Sunita? Yeah. Thank you so much, Dr. Shilpa. You have hello, voice cut हो रही है क्या? On behalf of ABCA, it is my absolute pleasure to extend our heartfelt gratitude to Dr. Shilpa Chawla of her enlightening and insight session on psoriasis and homeopathy. We Dr. Sunita, appreciate just your- a minute. Dr. Sunita, just a minute. Sorry to interrupt you. Yeah. Dr. Shilpa, please stop sharing your screen. Please, Dr. Sunita, please continue. Sorry. Yeah. We appreciate your time and effort you took to share us your wisdom for today. Sincerely thanks once again, and we look forward to same type of sessions in future and wishing you a good luck in future. Thank you so much. Over to you, ma'am. Dr. Dhimisha ma'am, over to you. Yes. I want to share the certificate. Just a minute.
There are some questions also, I guess. Pardon? Questions are there. Please. Is seborrheic dermatitis called psoriasis? No, And it's dandruff? no. Seborrheic dermatitis is different. More of fungal. Double voice is coming, I guess. Dr. Roli, share the certificate. Dr. I'll send it on. Ma'am, am I Just a minute. Ma'am, your voice, Dr. Shilpa ma'am, your voice is too much breaking. okay? Basically, seborrheic dermatitis glands are important. Particularly scalp and and it is more skin disease that it is more like fungal infection, dandruff like. Is Dr. Roli there? Dr. Roli, there is a question for you. Does dairy product like milk lead to precocity nowadays? Sorry, ma'am, your Actually, voice is breaking. hello. डॉक्टर नेहा उसको ओपन कर दीजिए फिर। Is it okay, ma'am? Dr. Prajapati, please. Dr. Shilpa for her beautiful presentation. डॉक्टर शिल्पा जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you so much, sir. बड़ी सुंदर प्रेजेंटेशन। स्किन डिजीज पर आज की डेट में 10वां व्यक्ति स्किन डिजीज से पीड़ित है और ये कोई उपाय नहीं है इसमें केवल होम्योपैथी स्किन डिजीज बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं और तो हम कह नहीं सकते 10-20 साल कभी होते ही नहीं है। को बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you so much, sir. Okay, thank you all. As we conclude this webinar, I would like to extend my heartfelt gratitude to each and every one of you for joining us today. Your participation and engagement have made this session truly meaningful. A special thanks to both our speakers for their incredible contribution, and also applause for entire ABCA for organizing this wonderful session. Thank you all. Thank you. I want to say, ma'am, Shilpa ma'am, one of the biggest thing which I really like in your presentation की जो जैसे आपने GNM के बारे में बताया, डॉक्टर दिमिशा मैम भी बहुत अच्छे से उस चीज को एक्सप्लेन करती हैं। The emotional conflict and उनकी जो लेयरिंग्स आपने शेयर करी वो हमारे लिए काफी न्यू था और थेरेपेटिक सबसे अच्छी थी। अगर हम सिर्फ थेरेपेटिक पार्ट को भी अच्छे से समझे तो ये हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत हेल्पफुल है। आपने मैक्सिमम मेडिसिन कवर कर ली, अगर हम इसको ही डिटेल समझकर प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट करेंगे तो दिस इज वेरी हेल्पफुल, स्पेशली द इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट के साथ जहाँ आपने एग्रावेशन एंड बहुत क्रिस्प था आपका जो प्रेजेंटेशन था, इट वाज वेरी क्रिस्प। तो इफ इट इज ओके, कैन यू शेयर योर पीपीटी विद ऑल ऑफ अस? Sure, actually, so
Because we have completed math. I didn't get you, ma'am. Can you repeat it, please? Yeah, it's actually I have noted. So the pattern is not reading. Okay. Okay. If it is okay, then आप सिर्फ therapeutic वाला part ही share करना. Surely I will. ठीक है? That will be more helpful for all of us. If we can get the recording and share, then everybody will automatically get Yes, the yes, that will be also fine. That sure, ma'am. ठीक है. Thank you, Dr. Shilpa. Thank you so much. Looking forward for more presentations. Yeah, sure. Yes, yes. Thank you. With more speakers. Yes. Yes, yes, From yes. ABCA. Yes, Yes. So this is the ma'am beauty of ABC actually. Actually जब भी ये बात होती है ना तो सर कहते हैं ABCA के persons ही present करेंगे. So that is the beauty of ABCA. So we want exactly, and this is the platform ABCA is giving for the newcomers and all the people. So be confident and express yourself. So that is the most important aim of the ABC also. So हम सब मिलकर जितना ज़्यादा होम्योपैथी को अपलिफ्ट करेंगे और साथ में खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव करेंगे, सो इससे अच्छा बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है. बिल्कुल सही, एकदम सही. Thank you everyone. Thank you sir. Thank you Sunita ma'am. Thank you Dimisha ma'am. Thank you Shilpa ji. Thank you Roli ma'am. And we will meet you on 6th. Please be on time on 6th. And it's going to be a big event for all of us to celebrate with our health minister, and that is the big event. So let's celebrate our father of homeopathy event and spread homeopathy and spread love in between all of us. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, Please be on Dr. time. Yes. Bye. Yeah, thank you. Bye. Bye.